میں اس وقت جتنے لوگ شائنسٹا ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. ہم خدا کے گھر میں موجود ہیں اور خدا سے برکت پانے کے لیے, خدا سے اس کے کلام کو سننے کے لیے, خدا سے اس کے عجائب کو, اس کے بڑے بڑے کاموں کو, اس کے بڑے بڑے مکاشفات کو, اس نے جو بڑے بڑے معجزات کیے ہیں, نشانات ظاہر کیے ہیں, اس کے تعلق سے سیکھنے کو ہے. اور آج میں جس موضوع پر بات کرنے کو ہوں وہ موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ ہمارا خدا ہمارے مشکلات میں بھی, ہر قسم کی پریشانی میں بھی ہمیں بچانے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. سو آپ شائنسٹا ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیے. میرا ایمان ہے کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر شفا کو جاری کرتا ہے. اس لیے آپ اس پورے پیغام کو سنیں اور خدا اپنے کلام کی قدرت کو ظاہر کرے گا. ہاللیلویا. ہم خدا کے کلام میں سے خروج 14 باب اور اس کی 10 سے 15 آیات کو دیکھیں گے. خروج کی کتاب اس کا 14 باب اور اس کی 10 سے 15 آیات کو ہم دیکھیں گے. اور جب فرعون نزدیک آ گیا تو بنی اسرائیل نے آگ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں اور وہ نہایت خوف زدہ ہو گئے. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہنے لگے, کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ یس 15ویں آیات. کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں, کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہے. تب موسیٰ نے لوگوں سے کہا, ڈرو مت, چپ چاپ کھڑے ہو کر خدا کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا, کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی نہ دیکھو گے. خدا تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے. آمین. 15ویں آیت. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھے اور تو اپنی لاٹھی اٹھا کر اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا اور اسے 2 حصے کر. بنی اسرائیل سمندر کے بیچ میں سے خشکی زمین پر چل کر نکل جائے گی. آمین. ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے, دانیل 3 باب اس کی 19 سے 25 آیات تک. دانیل صفحہ نمبر 834. دانیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 19 سے 25 آیات تک. تب نبوکدنیزر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور مشرق اور عبدالنجور پر نمودار ہوا, اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 13 گنا زیادہ کرے. اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پلوانوں کو حکم دیا کہ صدرک اور مشرق اور عبدالنجور کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں. تب یہ مرد اپنے زرد جاموں, قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے. پس چونکہ خدا بادشاہ کا حکم تاکید تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت ہی تیز تھی, اس لیے صدرک اور مشرق اور عبدالنجور کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے. اور یہ 3 مرد یعنی صدرک اور مشرق اور عبدالنجور بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے. تب نبوکدنیزر بادشاہ اور سرما ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا, کیا ہم نے 3 شخصوں کو باندھ کر آگ میں نہیں ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا. اس نے کہا, دیکھو میں 4 شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ڈر نہیں پہنچا, اور چوتھے کی صورت اعلیٰ دادے کی سی ہے. آمین. اللہ تعالی. یس آمین. ہم یہاں دیکھتے ہیں پہلے حوالے میں خروج
14 बाब में हम देखते हैं कि बनी इसराइल जब मिस्र से निकले तो 6 लाख के करीब बहुत बड़ी तादाद बियाबान में मौजूद है। और बियाबान में जब वो भूखे और प्यासे हुए, जब उन्हें भूख ने तंग किया तो उनको मिस्र के खीरे, मिस्र के सारे खाने याद आए। और जब उन्होंने पीछे फरौन की फौजों को आते हुए देखा, मिस्रियों को आते हुए देखा, फरौन को अपने रथों के साथ आते हुए देखा, जो के पीछे उनके ताबूत में वहां पर पहुंचे। वो चाहते थे कि वो मिस्री जो पूरी फौज को, उस पूरे लश्कर को लेकर आ रहे थे, वो चाहते थे कि बनी इसराइल को मैदान में हलाक किया जाए। लेकिन जब मिस्रियों ने उनका पीछा किया और बनी इसराइल के लोगों ने पीछे मुड़कर देखा, तो मेरी बहनों भाइयों, एक तरफ फौज है, एक तरफ बनी इसराइल दरमियान में है और उसके सामने समुद्र मौजूद है, यानी पीछे दुश्मन की फौजें हैं। फरौन खुद सीपा सलार बनते हुए, जो कि एक बड़ा दुश्मन है खुदा के लोगों का, इसराइल का, जो वहां पर मौजूद थे, उनको हलाक करने के लिए सीपा सलार बनते हुए वो अपनी फौजों के साथ इसराइलियों को मारने के लिए आ रहा है। जब इसराइल के लोगों ने देखा, जब खुदा के लोगों ने देखा, तो मूसा से कहा कि क्या हम वहां क्यों न मर गए? क्या मिस्र के अंदर कब्रों के लिए जगह ना थी? अगर हमने मरना ही था तो हम बियाबान में आकर क्यों मर रहे हैं? क्योंकि सामने समुद्र, पीछे देखते हैं तो दुश्मन की फौजें हैं और ये फरौन आकर हमें हलाक कर देगा। इसका मतलब ये है कि दुश्मन ने हमें शहर से अलग किया है, मुल्क से अलग किया है और मैदान में लाकर हमें कत्ल करना चाहता है और हमारे लिए यहाँ पर कब्रिस्तान बनाना चाहता है, हमारे मुस्तकबिल को खत्म करना चाहता है, हमें हलाक करना चाहता है। और हम देखते हैं कि बनी इसराइल उस वक्त के नबी मूसा के पास जाती है और मूसा से कहते हैं कि हमारे लिए कुछ करो। और उस हालत में जबकि इंसान सब कुछ भूल जाए, खुदा के लोग दुआ में लग जाते हैं और खुदा को पुकारते हैं, मिन्नत करते हैं। और लिखा है कि वो घुटनों पर हो गए और खुदा को पुकारने लगे। और मूसा के लिए लिखा है कि वो खुदा को पुकार रहा था, दरखास्त कर रहा था। और उस वक्त खुदा ने 15वीं आयत में, खरूज 14 और उसकी 15 आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि मूसा तुम क्या कर रहे हो? सवाल उठाया। मूसा उस वक्त अपनी कौम की खातिर दुआ कर रहा था। मूसा कह रहा था, खुदा मेरे लोगों पर रहम को कर दे, मेरे लोगों के ऊपर अपनी नजर करम को फरमा दे। खुदा ने कहा, मूसा आप ये क्या करते हो? मूसा ने कहा, खुदा मैं क्या करूं? खुदा ने कहा, तेरे सामने समुद्र है, तो मुझे नहीं जानता जिसने आसमान से मन मुहैया किया है, जो पानी को मुहैया कर सकता है, जो तुम्हें फरौन से छुड़ा सकता है, जो तुम्हें मिस्रियों के दरमियान से निकाल सकता है। तू नहीं जानता कि मैं कौन सा खुदा हूं? मैंने तुझे फरौन के सामने खड़ा किया। खुदा ने मूसा से कहा कि तेरे हाथ में जो लाठी है, ये रेड सी जो बहरे गुलदम है, इसके दरमियान में इस लाठी को लगा तो मैं समुद्र को 2 हिस्से कर दूंगा और बनी इसराइल समुद्र में से होकर गुजरेंगे। खुदा के खादम ने खुदा के कलाम के मुताबिक उस पर ईमान रखते हुए जो कलाम जारी हुआ उसको अमल में लेकर आया, लाठी को समुद्र के दरमियान में मारा। मेरे खुदा ने जिसने पूरी कायनात को बनाया, वो जो सारी कायनात का मालिक है, उसने समुद्र को हुक्म दिया, वो 2 हिस्सों में हो गया, 2 दीवारें बन गई और खुदा के लोग बनी
इस्राएल उस समुद्र के दरमियान से होकर गुजरे। हालेलुया। और जब दुश्मन ने देखा, उन्होंने कहा मौका अच्छा है, ये तो समुद्र के बीच बीच पहुंच गए, आओ हम इनका पीछा करते हैं और उनको वहां जाकर हलाक करते हैं। लेकिन हमारे खुदा के अपने मंसूबे हैं। जब इस्राएल गुजर गए, फिरौन अपने रथों के साथ उसी समुद्र में आया। खुदा ने उस समुद्र को हुक्म दिया और समुद्र दोबारा बराबर हो गया। खुदा ने उनकी आंखों के सामने उनके दुश्मन को नेस्त किया। हालेलुया। आपका खुदा आपको बचाने की कुदरत रखता है। जब लगता है कि अब दीवार आ गई, जब लगता है कि अब हालात खराब हो गए, जब लगता है कि अब मरे तो मरे, जब लगता है कि अब उम्मीद खत्म हो गई, अब बीमारी नाइलाज हो गई, अब सब कुछ नामुमकिन हो गया, लेकिन हमारा खुदा नामुमकिन में से मुमकिन का रास्ता निकालता है। हालेलुया। वो कहता है कि मैं हूं सो मैं हूं, मेरे मालिक कोई और नहीं है। मैं तेरे लिए नाउमीदी से उम्मीदी को पैदा करता हूं, क्योंकि मैं कादिर मुतलिक, मैं बादशाहों का बादशाह। मैंने जो दूसरा हवाला पेश किया और उसमें हम देखते हैं कि सदरक मिस्र और अबदनजू जो अबरानी लड़के हैं, वो खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। दुश्मन ने सोचा, मजहबी लोगों ने सोचा कि ये तो कोई ऐसी कमजोरी, इनके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह हो कि ये बादशाह इनको हलाक करे। सो कुछ ऐसे लोग जो दरबारी थे, वो नबूकदनेस्सर के पास गए, बादशाह के पास। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, काफी देर हो गई, मुल्क में कोई बड़ा जश्न नहीं हुआ। सो बादशाह सलामत, आप एक बड़ी सोने की मूर्ति बनाए और हर एक शख्स सोने की मूर्ति के आगे झुकेगा। जो सोने की मूर्ति के आगे झुक जाएगा, इसका मतलब यह होगा कि वो जीता रहे। जो बादशाह सलामत की मूर्ति को पूजा नहीं करेगा, उसको आग की जलती हुई भट्टी में डाला जाएगा। बादशाह को यह आइडिया पसंद आया। दुश्मन ने सोचा कि ये जो लोग हैं सदरक मिस्र और अबदनजू, ये कैसे बुतों के आगे झुकेंगे, और ये जब ये झुकेंगे नहीं तो खुद ब खुद बादशाह इनको मार देगा। दुश्मन का ओरिजिनल प्लान ये था कि वो खुदा के लोगों को हलाक कर दे। बादशाह ने हुक्म जारी कर दिया। बादशाह ने कहा कि मूर्ति बनाई जाए और पूरे इलाका में, पूरे मुल्क के अंदर लोग सोने की मूर्ति के आगे पूजा करें और साथ बजाए गए। शैतानी क्वायरों को बुलाया गया। एक तो खुदा की क्वायर होती है, शैतान की भी क्वायर होती है। खुदा की क्वायर को शैतान की क्वायर नहीं बनना चाहिए। वैसे बाय द वे, शैतान की क्वायर हलाक करने के लिए है, जो खुदा की क्वायर है वो लोगों में जिंदगी जारी करने के लिए है। हालेलुया। सो शैतान की क्वायरें जमा हो गई, डांस शुरू हो गया, नरसिंगे बजाना शुरू कर दिए और ऐलान यह किया कि जब नरसिंगा बजाया जाए, तमाम तर लोग मूर्ति के आगे क्या हो जाए, बताइए क्या हो जाए, झुक जाए, उसकी पूजा करें। जब मूर्ति को लाया गया, सदरक मिस्र और अबदनजू ने जब मूर्ति को देखा, कहा हम इसके आगे कैसे झुकेंगे, ये तो ना बोलता है ना सुनता है, ये तो बुत है, हम तो जिंदा खुदा की इबादत करने वाले हैं। जब दुश्मनों ने देखा कि सदरक मिस्र अबदनजू ने उसके आगे वो झुके रही, तो जाकर बादशाह को कंप्लेन की। बादशाह से कहा बादशाह सलामत, हम ना कहते थे कि ये वो लोग हैं जो कि तेरी पूजा नहीं करेंगे, इसलिए जरूर है कि इनको सजा दी जाए। बादशाह को गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उसने भट्टी को कितने गुना, भट्टी को 7 गुना, कितने गुना, मैडम बताइए कितने गुना। घर पे चूल्हा चलाते हैं फुल,
उसने भट्टी को फुल कर दिया 7 गुना। उसने कहा इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे आगे नहीं झुके, मैं बादशाह हूं। कुछ लोग होते हैं दूसरों को झुकाना चाहते हैं। चर्चिज में भी आज बहुत सारे नबूकदनेस्सर की तरह दूसरों को झुकाकर खुशी मिलती है, वो दूसरों को गिराना चाहते हैं कि दूसरा गिरे। मेरी अहमियत है, नबूकदनेस्सर की स्पिरिट, ये उसकी सोच थी कि ये मेरे आगे झुके। कितने गुना भट्टी को बढ़ाया? 7 गुना। इतना ज्यादा बढ़ाकर उन तीनों को बुलाया गया और उनको उनके अमामों समेत, उनकी कमीजों समेत, उनके कपड़ों समेत बांधा गया। सबके बांधा गया, उनको बांधा गया और उठाकर उस आग की जलती हुई भट्टी में डाल दिया। और जिन लोगों ने उनको उठाकर उस जलती हुई भट्टी में डाला वो खुद हलाक हो गए, क्योंकि इतनी तेज आंच थी। जब उनको डाल रहे थे उनको भी आग लगी और वो भी मर गए। इतनी तेज आग कि उसके करीब जाने वाले भी मर गए। लेकिन 7 लोग, वो 3 लोगों को जब उठाकर उन्हें भट्टी में डाल दिया, बादशाह सलामत देख रहा है कि मैं इनको जलते हुए देखता हूं, इनको खाक बनते हुए देखता हूं, इनका सुरमा बनते हुए देखता हूं। जब बादशाह ने नजर की, बादशाह एकदम खड़ा हो गया हैरत के साथ। उसने अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहा, ओ भाइयों सुनो, हमने कितने लोग थे जो भट्टी में डाले? उन्होंने कहा हमने 3 लोगों को डाला। उसने कहा 3 तो 3 या तो 4 दिखाई देते हैं, तुमने बांध के डाला था, वो तो भट्टी के अंदर आजाद चलते फिरते मुझे दिखाई देते हैं। उसने कहा कि ये कौन है? उसने कहा इसकी जो चौथा दिखाई देता है उसकी शक्ल इल्लाज़ादे जैसी है, यानी इनका खुदा आसमान से इस जलती हुई भीड़, इस जलती हुई भट्टी के अंदर उतरा है और उसने अपने लोगों को बचाया है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने कहा 3 को डाला, चौथा कौन है? और उसने अपनी आंखों से मेरे और आपके खुदावन को, जो कि आप ताबे सदाकत है, जो आग के ऊपर भी काबिज है, पानी को भी कंट्रोल करता है, वो खुद जलती हुई भट्टी के अंदर जहां पर वो इंसान हलाक हो गए, लेकिन मेरा खुदावन अपने लोगों को बचाने के लिए भट्टी में आया, उनको आजाद किया और आग के अंदर उनके साथ चलता फिरता दिखाई दिया। हालेलुया। फिर हम क्यों डरते हैं? हम क्यों खौफ में आते हैं? हम क्यों परेशान होते हैं? हमारा ईमान कहां गया? सिर्फ एक छोटा सा बिल है जिसको गलती से छेड़ा गया, हुकूमत ने छेड़ा। 20 दिन से मौलाना हजरात सड़कों पर बैठे। कितने लोगों ने सुना सबने? सिर्फ उन्होंने सोचा ही, थोड़ा सा हाथ ही लगाया। उन्होंने कहा भाई सोचा ही क्यों है? 20 दिन से रोड बंद है, सोचा ही क्यों है? तुमने इस कानून को बदलने का सोचा क्यों? रोड बंद, सब कुछ आप देख रहे हैं, टीवी चैनल बंद हो गए, फेसबुक बंद हो गई, हमारे लोगों का सांस नहीं निकल रहा फेसबुक के बगैर, यूट्यूब बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। देखिए लोगों के अंदर कितनी गैरत है। सर्दी में, सावन में कितनी सर्दी है, 20 दिन से बैठे, आंसू गैस और मारे खाई 6 लोग अब तक मर चुके हैं। कराची में जब से वहां ऑपरेशन हुआ, कराची और बाकी शहरों में भी लोग रोड्स के ऊपर बैठे हैं। यहां प्रेयर नाइट हम करें ना, एक रात, तो लोग नहीं, उनको बड़ी मुश्किल होगी, वो सर्दी है। बाहर बोलते बेटियों को उतरी रात को कहा जाए, वही बेटी जॉब करती हो, रात को पीआई वाले वैन आएंगे लेने के लिए, वो बाय बाय बेटा, अपने बॉस को बोलना मेरी तरफ से सलाम, रात को भेज देंगे। कंपनी ने
इस्लामाबाद लेकर जाना है ट्रेनिंग के लिए, 3 दिन के लिए जाएंगे, कोई बात नहीं, पैसे आ गए, यानी हमने पैसे को खुदा बना लिया। अगर पैसे मिल रहे, नौकरी है, ड्यूटी, बल्कि हम नौकरी हम ड्यूटी कर, ड्यूटी है ये, इसकी ड्यूटी। संडे वाले दिन भी जा रहे हैं, संडे वाले दिन लड़की है कॉलर में भी जा रही, छुट्टी वाले दिन अगर बैंक वालों ने बुलाया फिर भी जा रही। ड्यूटी है, सबके ड्यूटी है, ड्यूटी। हम गुलाम हैं, अभी भी मिस्र में। अगर हम आजाद हैं तो फिर हमारे अंदर गैरत हो अपने खुदावन की। जो गैरतमंद है उनके लिए वो भट्टी में आकर बचाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा हम गैर मबूदों के सामने नहीं झुकेंगे, तो आसमान से तख्त से उसको आना पड़ा उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो उसके लोग थे। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, हमारे अंदर कितना जज्बा है, हमारे अंदर कितना बोझ है, ये हमने देखना है। चर्च के अंदर एक रात नहीं बैठ सकते, वो लोग रोड्स के ऊपर बैठे सर्दी में। पंजाब में कितनी सर्दी है, रोड के ऊपर बैठे हुए, और बात भी किस लिए सोचा कि भाई आप कानून क्यों बदल रहे। लेकिन हमारे लड़कों में, हमारे लोगों में शायद हम लोग बहुत कमी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मेरा ईमान है कि कम से कम इस चर्च के लोग गैरतमंद होंगे। हालेलुया। अगर आप गैरतमंद लोग हैं, ईमान वाले हैं, अहले ईमान हैं, ईमान के बोझ को और ईमान के उस राज को अपने अंदर रखते हैं, तो जोरदार नारा लगाइए हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास कि जब हम देखते हैं, आए हम हवाला ये देख रहे थे, मैं चाहता हूं एग्जैक्टली हम ईमाल 16 कलीसिया से कोई भी ये हवाला निकाले और उसकी 23 आयत लगवाकर उन्हें कैदखाना में डाला और दुरागा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करे। उसने ऐसा पाकर उन्हें अंदर के कैदखाना में डाल दिया और उनके पांव काट में ठोंक दिए। आधी रात के करीब पौलुस और सिलास दुआ कर रहे और खुदा की हमदे की गा रहे थे। कैदी सुन रहे थे। यकैक बहुत बड़ा भूचाल आया, यहाँ तक कि कैदखाना की नींव हिल गई और उसी दम सब दरवाजे खुल गए और सबकी बेड़ियां खुल पड़ी। और दुरागा जाग उठा और कैदखाना के दरवाजे खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए और तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन पौलुस ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, अपने दाएं नुकसान न पहुंचा, क्योंकि हम सब मौजूद हैं। वो चिराग मंगवाकर अंदर जाकर कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, ऐ साहबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान ला, तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घरवालों को खुदावंद का कलाम सुनाया और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके जख्म धोए। उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। आमीन। पौलुस और सिलास अंजील सुनाने की वजह से गिरफ्तार हुए, यही कलाम सुनाने की वजह से गिरफ्तार हुए। और लिखा है कि उनको मारकर, उनको पीटकर, पांव में काट और उनके हाथों को बांधकर कैद खाने के बिल्कुल अंदर, यानी जो खास सीक्रेट जगह है, खुफिया जगह है, सबसे अंदर की जगह है, खतरनाक तरीन जेल जो कैद है, वहां पौलुस और सिलास को बांधकर पांव काट में ठोक कर वहां पर रख दिया गया। लेकिन जब आधी रात हुई, सबके आधी रात, ऊंची आवाज में कहिए आधी रात, जब आधी रात हुई तो हमारे लोग जबकि बाकी कामों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन पौलुस और सिलास जब आधी रात हुई है तो लिखा है कि वे दुआ और खुदा की हम्द कर रहे थे। और हम्द अंदर अंदर नहीं कर रहे थे, दुआ अपने अंदर नहीं कर रहे थे। जब पांव
चिपके हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, मार भी पड़ी है, जख्म भी उनको लगे हैं, खून भी जारी है, कैद की हालत में है, लाइट भी नहीं है, रोशनी भी नहीं है, और उस हालत में जब तक पता नहीं कि क्या हो जाए, जब हम परेशान हो जाते हैं, बिलबला उठते हैं, जब हम ये सोचे कि पता नहीं अब क्या होगा, उस हालत में रात के टाइम, आधी रात के वक्त वो हम्द कर रहे हैं, वो गीत गा रहे हैं और खुदा की सताइश कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं और ऊंची आवाज के साथ दुआ कर रहे हैं, क्योंकि जो कैदी थे वो सुन रहे थे, बाकी कैदी सुन रहे थे कि ये पौलुस और सीलास क्या कर रहे हैं। जब आधी रात के वक्त वो दुआ और सताइश कर रहे थे, तो आसमान से जब मेरे खुदा ने पौलुस और सीलास को देखा, पाक रूह खुद वहां पर उतरा और वो जगह हिल गई, वो चाल आ गया और दरवाजे खुल गए। वो दरोगा जो वहां पर उनके निगरानी पर फायज था, जब उसने देखा ये तो खतरनाक कैदी थे, ये खुद ब खुद आजाद हो गए, खुदा ने आकर उनको आजाद किया है, वो परेशान हुआ, तलवार से खुद को कत्ल करना चाहा। पौलुस और सीलास ने कहा खुद को कत्ल न कर, क्योंकि खुदा ने हमें खुद बचाया है। जाकर उनको कहता है ऐसा वो मैं क्या करूं कि मैं जात पाऊं। उन्होंने कहा कि यीशु को कबूल कर और तू हमेशा की जिंदगी पाएगा। हमारा खुदा हमें कैद में और हर किस्म की परेशानी से बचाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। यहाँ तो बुखार हो जाए, गला खराब हो जाए, हमारे पास बहाना आ जाता है, आज चर्च नहीं जाना, आज हमें इबादत नहीं करनी, रात को लेट सोए। हमारे साथ ये मसला हो गया, हाथ बंधे हुए, मारा गया, खून जारी, पांव ठुके हुए काट में, मुंह भी नहीं हो सकते, फिर भी उसकी इबादत और प्रस्तिश करें। हालेलुया। हम कहते हैं हमारा खुदा हमें बरकत क्यों नहीं देता, हम कहते हैं हमारा खुदा हमारी जिंदगी में निशानात और मौजूदात क्यों नहीं करता, हम कहते हैं कि हमें वो चीजें दिखाई क्यों नहीं देती। ईमान नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, उस तरह से आप उसकी इबादत नहीं करते, उस तरह से हम उसकी पूजा नहीं करते, इसलिए वो सारी चीजें हम नहीं देखते हैं। हमारा खुदा तो आज भी वही खुदा है, वह हमें आज भी बचाने की ताकत और कुदरत रखता है। जब हम उसके लिए गाते और बजाते हैं, जब ईमान के साथ उसके सामने आते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ मुमकिन हो जाता है। हालेलुया। अगर आपका ईमान है कि आज खुदा आपसे सब कुछ मुमकिन करने को है, खड़े हो जाएं। अब जैसे आए वैसे कभी नहीं लौटेंगे, आज आपकी लाइफ हमेशा के लिए बदल जाएगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपने हाथ आसमान की जानिब उठाएंगे। हमारा खुदा यहाँ पर मौजूद है, उससे बरकत को ले लें, सिर्फ शिफा नहीं बल्कि उससे मोहब्बत का इजहार करें। हम तुझसे मोहब्बत करते हैं ऐ मालिक, ऐ बाप, हम तुझसे प्यार करते हैं। और खुदा ये प्यार बगैर किसी मुफाद से है, ये मोहब्बत इसलिए नहीं कि तू मुझे बरकत दे, ये मोहब्बत इसलिए नहीं कि तू मुझे आग की जलती हुई भट्टी से बचाए, ये मोहब्बत इसलिए नहीं कि तू मुझे पैसा दे, ये मोहब्बत इसलिए नहीं कि तू मुझे बड़ी गाड़ी दे, बल्कि ये मोहब्बत इसलिए है क्योंकि तू मेरा महबूब है, मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकता। अगली शरीर के सारे मंसूबे खुदा के जिंदा बेटे यीशु के नाम में कैंसिल हो जाए। हर किस्म की बीमारी, जादू के असरात, तावीज यीशु के नाम में ब्रेक हो जाए, नेस्त हो जाए। रूह कुदस की आग से हर किस्म की बीमारी
دیکھ رہے ہیں شائن اسٹار ٹی وی، پاکستان فرسٹ کرسچن یوتھ چینل۔